हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन 1, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि ये जो आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आप इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा क्यूब रूट फाइंड करें। सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है 64। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 64 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। यहाँ नोट करते हैं 64 फर्स्ट डिवाइड बाई 2, 2 3 या 6, 2 2 या 4, अगेन डिवाइड बाई 2, 8 is 16, again divide by 2, 8 is 8, again divide by 2, 8 is 4, divide by 2, 8 is 2, again divide by 2, 8 is 1. Write here cube root 64 is equal cube root 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। स्टूडेंट, ये क्यूब रूट है ना, जैसे आप स्क्वायर रूट में 2 का पेयर करते थे ना, यहाँ आपने पेयर के बजाय ट्रिपलेट करना है। 1 ट्रिपलेट ये है, 1 ट्रिपलेट ये है, तो आप इस ट्रिपलेट से 2 लेंगे और इस ट्रिपलेट से 2 लेंगे। ये 2 2 टाइम 4, इट मीन्स क्यूब रूट 64 इज इक्वल हुआ 4। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट सेकेंड 512। सबसे पहले 512 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 12, इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 या 4, 2 5 या 10, 2 6 या 12, बाई 2, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 8 टाइम 16, बाई 2, 2 6 टाइम 12, 2 4 टाइम 8, again by 2, 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, again by 2, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, again by 2, 2 8 टाइम 16, again by 2, 2 4 टाइम 8, again by 2, 2 2 टाइम 4, again by 2, 2 1 टाइम 2. Now write here cube root 512 is equal cube root 2 into 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 2. That's okay. Now see here, take 2 from this triplet and 2 from this triplet and 2 from this triplet. Now it is 2 2 times 4, 2 times 8 is equal 8, and write here cube root 512 is equal 8. That's okay. Now next part. Part third 10,648. Student, now find prime factors of 10,648. Write here 10,648 divide by 2, 2 5 times 10, 2 3 times 6, 2 2 times 4, 2 4 times 8, again divide by 2, 2 2 times 4, 2 6 times 12, 2 6 times 12, 2 2 times 4, divide by 2, 2 1 times 2, 2 3 times 6, 2 3 times 6, 2 1 times 2. Now it can't be divided by 2,
or not in divisible property of 3, and it is not divisible by 5 also, can't divide by 7 also. It is divisible by 11. 11 1 time 11, 11 2 time 22, 11 1 time 11. You can divide properly yourself also. Now again 11 time 11 time 121. Now again by 11, it is 1. So write here cube root 10,648 is equal cube root 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11. Take 2 from this triplet and 11 from this triplet. 2 multiplied by 11 is equal 22. So you can write cube root 10,648 is equal 22. That's okay. Now next part 4, 27,000. Student, first find the prime factors of 27,000. 27,000. Now divide by 2. 2 1 time 2. 2 3 times 6. 2 5 times 10. 0 and 0. Now again by 2. 2 6 times 12. 2 7 times 14. 2 5 times 10 and 0. Again by 2. 2 3 times 6. 2 3 times 6. 2 7 times 14. 2 5 times 10. Now by 3. 3 1 times 3. 3 1 times 3. 3 2 times 6. 3 5 times 15. Again by 3. 3 3 times 9. 3 7 times 21. 3 5 times 15. Again by 3. 3 1 times 3. 3 2 times 6. 3 5 times 15. Now by 5. 5 2 times 10. 5 5 times 25. Again by 5. 5 5 times 25. Again by 5. 5 1 times 5. So write here cube root 27,000 is equal cube root 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5. Take 2 from this triplet, 3 from this triplet and 5 from this triplet. 2 3 times 6, 5 times 30 is equal 30. Write here cube root 27,000 is equal 30. That's okay. Now next part 5th, 15,625. Student, now find prime factors of 15,625. Write here 15,625 divide by 5. 5 3 times 15. 5 1 times 5. 5 2 times 10. 5 5 times 25. Again by 5. 5 6 times 30. 5 2 times 10. 5 5 times 25. Again by 5. 5 1 times 5. 5 2 times 10. 5 5 times 25. Again by 5. 5 2 times 10. 5 5 times 25. Again by 5. 5 5 times 25. Again by 5. 5 1 times 5. So it is cube root
15,625 is equal cube root 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5. Take 5 from this triplet and 5 from this triplet. 5 into 5, it is 25. So write here cube root 15,625 is equal 25. Now next part. Part 6, 13,824. First, find the prime factors of 13,824. Divide by 2. 2 6 times 12, 2 9 times 18, 2 1 times 2, 2 2 times 4. Again by 2. 2 3 times 6, 2 4 times 8, 2 5 times 10, 2 6 times 12. Again by 2. 2 1 times 2, 2 7 times 14, 2 2 times 4, 2 8 times 16. Again by 2. 2 8 times 16, 2 6 times 12, 2 4 times 8. Again by 2. 2 4 times 8, 2 3 times 6, 2 2 times 4. Again by 2. 2 2 times 4, 2 1 times 2, 2 6 times 12. Again by 2. 2 1 times 2. Write here 0, then 2 8 times 16. Not write 18. 18 2 times is 36. It is 108. Or you can divide properly. 216 divided by 2. 2 1 times 2. Carry down 1. It can't be divided by 2. So you will do 0 time. Remaining 1 and carry down 6 to 8 times 16. Like this it is 108. Not 18. That's okay. Now again divide by 2. 2 5 times 10. 2 4 times 8. Again divide by 2. 2 2 times 4. 2 7 times 14. Remaining try here. 27 divided by 3. 3 9 times 27. Again by 3. 3 times 9. Again by 3. 3 1 times 3. Now write here cube root 13,824 is equal cube root 2 into 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 3 into 3 into 3. Now take 2 from this triplet, 2 from this triplet and 2 from this triplet and 3 from this triplet. It is 2 2 times 4, 2 times 8, 3 times 24 is equal 24. Write here cube root 13,824 is equal 24. That's okay. Now next part. Part 7, 1,10,592. Student, first find prime factor of 1,10,592.
592. Divide by 2. 2 5 times 10. 2 5 times 10. 2 2 times 4. 2 9 times 18. 2 6 times 12. Again by 2. 2 2 times 4. 2 7 times 14. 2 6 times 12. 2 4 times 8. 2 8 times 16. Again by 2. 2 1 times 2. 2 3 times 6. 2 8 times 16. 2 2 times 4. 2 4 times 8. Again by 2. 2 6 times 12. 2 9 ja 18. 2 1 ja 2. 2 2 ja 4. Again by 2. 2 3 ja 6. 2 4 ja 8. 2 5 ja 10. 2 6 ja 12. Again by 2. 2 1 times 2. 2 7 times 14. 2 2 times 4. 2 8 times 16. Again by 2. 2 8 times 16. 2 6 times 12. 2 4 times 8. Again by 2. 2 4 times 8. 2 3 times 6. 2 2 times 4. Again by 2. 2 2 times 4. 2 1 times 2. 2 6 times 12. Now try here. It is 216. We have carried here. Divide by 2. 2 1 times 2. 0 and 2 8 times 16. By 2. 2 5 times 10. 2 4 times 8. Divide by 2. 2 2 times 4. 2 7 times 14. Now by 3. 3 9 times 27. By 3. 3 3 times 9. By 3. 3 1 times 3. So write here cube root 1,10,592 is equal cube root 2 into 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 3 into 3 into 3. Take 2 from this triplet. 2 from this triplet. 2 from this triplet. 2 from this triplet. And 3 from this triplet. 2 2 times 4, 2 times 8, 2 times 16, 3 times 48 is equal 48. Now write here cube root 1,10,592 is equal 48. That's okay. Now next part. Part 8. 46,656. Student, find prime factors of 46,656. Divide by 2. 2 2 times 4. 2 3 times 6. 2 3 times 6. 2 2 times 4. 2 8 times 16. Again by 2. 2 1 times 2. 2 1 times 2. 2 6 times 12. 2 6 times 12. 2 4 times 8. By 2. 2 5 times 10. 2 8 times 16. 2 3 times 6. 2 2 times 4. Again by 2. 2 2 times 4. 2 9 times 18. 2 1 times 2. 2 6 times 12. Again by 2. 2 1 times 2. 2 4 times 8. 2 5 times 10. 2 8 times 16. By 2. 2 7 times 14. 2 2 times 4. 2 9 times 18. Now by 3. 3 2 times 6.
3 4 times 12, 3 3 times 9, again by 3, 3 8 times 24, 3 1 times 3, again by 3, 3 2 times 6, 3 7 times 21. Now remaining do here, it is 27 divided by 3, 9 times 27, by 3, 3 3 times 9, by 3, 3 1 times 3. So write here cube root 46,656 is equal cube root 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. Now take 2 from this triplet, 2 from this triplet, 3 from this triplet, and 3 from this triplet. 2 2 ja 4, 3 ja 12, 3 ja 36. So write here cube root 46,656 is equal 36. Now part 9, 1,75,616. Student, find prime factor of 1,75,616 divided by 2, 2 8 times 16, 2 7 times 14, 2 8 times 16, 0, and 2 8 times 16. Again by 2, 2 4 times 8, 2 3 times 6, 2 9 times 18, 0, and 2 4 times 8. Again by 2, 2 2 times 4, 2 1 times 2, 2 9 times 18, 2 5 times 10, 2 2 times 4. Again by 2, 2 1 times 2, 0, and 2 9 times 18, 2 7 times 14, 2 6 times 12. Again by 2, 2 5 times 10, 2 4 times 8, 2 8 times 16, and 2 8 times 16. Again by 2, 2 2 times 4, 2 7 times 14, 2 4 times 8, 2 4 times 8. Again by 2, 2 1 times 2, 2 3 times 6, 2 7 times 14, 2 2 times 4. Again by 2, 2 6 times 12, 2 8 times 16, 2 6 times 12. Again by 2, 2 3 times 6, 2 4 times 8, 2 3 times 6. Now by 7, 7 4 times 28, 7 9 times 63. Now by 7, 7 7 times 49. Again by 7, 7 1 times 7. Now write here cube root 1,75,616 is equal cube root 2 into 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 7 into 7 into 7 is equal. Take 2 from this triplet, 2 from this triplet, 2 from this triplet,
and 7 from this triplet. It is 2 2 times 4 2 times 8 7 times 56. So write here cube root 1,75,616 is equal 56. That's okay. Now part 10, 91,125. Student, find prime factor of 91,125. 91,125. First divide by 3. 3 3 ja 9. Now 0 time. Then 3 3 ja 9. 3 7 ja 21. 3 5 ja 15. Now again 3. 3 1 time 3. 0. 3 1 time 3. 3 2 time 6. 3 5 time 15. Again by 3. 3 3 ja 9. 3 3 ja 9. 3 7 ja 21. 3 5 ja 15. Again by 3. 3 1 time 3. 3 1 time 3. 3 2 time 6. 3 5 time 15. Again by 3. 3 3 ja 9. 3 7 ja 21. 3 5 ja 15. Again by 3. 3 1 time 3. 3 2 time 6. 3 5 time 15. Now by 5. 5 2 time 10. 5 5 time 25. Again by 5. 5 5 time 25. Now by 5. 5 1 time 5. So write here cube root 91,125 is equal cube root 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5. Now take 3 from this triplet and 3 from this triplet and 5 from this triplet. It is 3 3 ja 9, 5 times 45 is equal 45. That's okay. Question 2. State true or false. Students, यहाँ आपको ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपने इनको ट्रू और फॉल्स बताना है. पार्ट 1. क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि किसी ऑड नंबर का क्यूब वह इवन होता है. देखो स्टूडेंट, हम 1 का क्यूब करें तो यह 1 इंटू 1 इंटू 1 होगा. 1 1 टाइम 1 1 टाइम 1, तो यह तो 1 ही आया. 1 तो भाई इवन नंबर नहीं है. 1 इवन नंबर नहीं है. ये बात तो रॉन्ग हुई. और नंबर ट्राई कर लेते हैं. मान लो हम 3 का क्यूब करें तो ये 3 3 जा 9 3 जा 27 होगा. ये भी इवन नंबर नहीं है. इट मीन्स यह स्टेटमेंट फॉल्स है. यहां नोट कर दें फॉल्स. दैट्स ओके. अब आपसे बोला जा रहा है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 20. कोई भी परफेक्ट क्यूब 20 पर एंड नहीं होता. देखो इसे भी चेक करते हैं. मान लो हम 10 का क्यूब निकालें तो ये 10 इंटू 10 इंटू 10. 10 10 जा 100 10 जा 1000 हुआ. यहाँ तो 3 0 है. ये बोल रहा है कि 20 पर एंड नहीं होता, 2 पे एंड नहीं होता. तो इट मीन्स इट इज ट्रू. क्योंकि 10 का क्यूब तो 30 पे एंड होता है, 2 पे नहीं. और वही बात ये बोल रहा है कि 2 पर एंड नहीं होता. दैट्स ओके. पार्ट 3. इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विद 5. किसी नंबर का स्क्वायर 5 पर एंड होता है. जैसे हम 15 का स्क्वायर निकालें तो ये 225 होगा.
ये बोलता है आगे कि क्यूब का एंड जो है 25 पर होगा। देखो स्टूडेंट्स, हम वंस प्लेस की बात तो बोल सकते हैं, वंस प्लेस की बात तो बोल सकते हैं कि यह एंड 5 पर होगा, वंस प्लेस 5 होगा, बट टेंस प्लेस के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। दैट्स ओके, इसीलिए ये हुआ फॉल्स। पार्ट 4, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। यहां बोला जा रहा है कि ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 एंड हो। देखो हम 2 को ही चेक करते हैं, 2 का क्यूब होता क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4 2 या 8, यही हो गया। इट मीन्स यह स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ पार्ट 5, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट नंबर होता है। देखो चेक करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ये 10 है, इसका क्यूब निकालें तो यह 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 10 10 या 100, 10 या 1000, ये तो भाई 4 डिजिट हो गए। जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसका ही क्यूब 4 डिजिट में है, तो 3 में कैसे पॉसिबल होगा, इसीलिए यह स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। पार्ट 6, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि 2 डिजिट नंबर का क्यूब वो 7 डिजिट या उससे मोर डिजिट का होगा। देखो सबसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है, हम 99 का क्यूब करते हैं तो यह 99 इंटू 99 इंटू 99। स्टूडेंट, जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आएगा 9,70,299। आपका टाइम सेव करने के लिए हमने ये प्रॉपर मल्टीप्लाई नहीं किया है, किसी बच्चे को डाउट हो तो वो सेल्फ में कर लेगा। अब देखो इसके डिजिट देखते हैं, 3 डिजिट ये है, 2 ये है, 1 ये है, ये तो ओनली 6 डिजिट हुए, जबकि यह 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, तो यह 7 डिजिट नहीं हो सकता है। मोर की तो बात ही अलग है, इसीलिए यह स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। पार्ट 7, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। चेक करते हैं, देखो 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1, ये तो 1 ही होगा। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 8 हो गया। यहां बोला है मे बी, सभी के लिए नहीं, कुछ का हो सकता है, तो भाई ये 2 का तो है, इसीलिए यह स्टेटमेंट भी ट्रू हुआ। यहां नोट करें ट्रू। दैट्स ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 3, you are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is the cube root of 4913, 12167, 32768? स्टूडेंट्स, अब हम आपको विदाउट एनी कैलकुलेशन क्यूब रूट बताते हैं। देखो जैसे फर्स्ट नंबर है 1331, यहां नोट कर लें 1331। देखो सबसे पहले आप इधर से 3 का पेयर ले लोगे, ट्रिपलेट ले लोगे। अब ट्रिपलेट में आप देखोगे 1 इसके क्यूब में आता है, तो देखो आप 1 का क्यूब करेंगे तभी 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा। इट मीन्स वंस प्लेस पर 1 हो गया। अब ये रहा ट्रिपलेट से अलग, यह सिंगल नंबर है 1, तो यह भी 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल 1 होगा, तो इसका टेंस प्लेस भी 1 हो गया। इट मीन्स 1331 का क्यूब रूट हुआ 11। आपको कुछ समझ आया होगा, थोड़ा बहुत अभी डाउट हो सकता है।
वो नेक्स्ट वाले नंबर से हो जाएगा। देखो जैसे ये है 4913, तो सबसे पहले आप ये 3 का ट्रिपलेट बनाएं। इसमें देखें वंस प्लेस क्या है 3। अब आप देखें 3 किसके क्यूब में आता है। देखो 3 3 या 9 3 या 27, 3 के में तो 7 आ जाता है। और हम 7 ही चेक करें, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 या 49 हो गया, इंटू 7, 7 9 या 63, मीन्स वंस प्लेस 3 हो गया। ये वंस प्लेस 3 कब हुआ, जब हमने 7 का क्यूब किया। दैट्स ओके। इट मीन्स यहाँ वंस प्लेस पर तो 7 आएगा। ये ट्रिपलेट है। अब ये रिमेनिंग है 4। तो देखो 4 किसका क्यूब सूटेबल होता है, 4 किसका क्यूब सूटेबल होता है। 1 का करते हैं तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 ही हुआ। और 2 का करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से हम ग्रेट नंबर तो नहीं ले सकते, हाँ स्मॉल ले सकते हैं। इस तरह से टेंस प्लेस पर हुआ 1, इसका टेंस प्लेस हुआ 1। आपको समझ आया होगा। देखो ट्रिपलेट लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने फाइंड किया कि किसका क्यूब करने से वंस प्लेस पर 3 आएगा। वह 7 का क्यूब करने से आता है। उसके बाद में देखा यह किसके लिए सुइटेबल है, जो क्यूब करने पर 4 से ग्रेट नहीं हो, वह 1 है। इट मीन्स वंस प्लेस 7 और टेंस प्लेस 1, यह नंबर हो गया 17। दैट्स ओके। अब इसकी बात करते हैं। देखो आपने ट्रिपलेट किया और यह वंस प्लेस 7 है। 7 आता है 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 के क्यूब में। इट मीन्स वंस प्लेस हुआ 3। ये ट्रिपलेट है। अब है 12। आप 12 के लिए चेक करें, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9 3 जा 27, तो ग्रेट हुआ। ये 8 सुइटेबल है। इट मीन्स इसका टेंस प्लेस हुआ 2, इसका टेंस प्लेस हुआ 2। इट मीन्स 23 का क्यूब 12,167 होगा। आप चेक कर सकते हैं 23 इंटू 23 इंटू 23, या मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,167 ही आएगा। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं 32,768। देखो ट्रिपलेट बनाए, यह वंस प्लेस 8 है। 8 2 का क्यूब करने से आता है। अब ये 32 है, हम 2 का करते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाता है। 3 का करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 3 जा 27। 4 का करते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 4 जा 64, यह तो काफी ग्रेट हो गया। इट मीन्स इसका टेंस प्लेस हुआ 3। इट मीन्स 32 का क्यूब 32,768 होगा। कोई डाउट हो तो आप 32 इंटू 32 इंटू 32 करके देख सकते हैं। दैट्स ओके। स्टूडेंट यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। किन्हीं बच्चों को 1 टाइम में ये ठीक से समझ नहीं आया हो तो आप इसे 1 टाइम अगेन लिसन कर लेंगे, देन आपको श्योर अंडरस्टैंडिंग होगा। फिर भी आपको एक बार रफली बता देते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, हम लास्ट वाला ही ले लें, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये 32,768 है। ये ट्रिपलेट किया, इसका वंस प्लेस चेक किया, ये 8 है। अब आप देखेंगे कि किस नंबर का क्यूब करने पर वंस प्लेस में 8 आता है, तो वह 2 का क्यूब करने से आता है। उसके बाद ये 32 रह गया। अब देखें हम किस नंबर का क्यूब करें जो 32 से ग्रेट नहीं आए। वह 3 का क्यूब है 27, तो टेंस प्लेस 3 हो गया। इस तरह से ये नंबर हुआ 32। दैट्स ओके। आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और भी कोई डाउट रह गया है तो इसे 1 टाइम मोर लिसन कर लें। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी, संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए
खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा।